ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास, नॉट सेमिनार। सेमिनार तो कुछ ना कुछ बता ही दूंगा, सेमिनार का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज यू शुड गेट अ चांस टू राइट डाउन मेंस to make you qualify prelims first and lay a sound foundation for general studies, because objective is that you want to become civil servant. Many of you want to become only IAS officer. So for becoming anywhere IAS officer or IPS or anywhere in the list out of all 23 services, any one of the services, if you want to get into, there are certain common personality traits. Have you ever thought why there is a single exam for 23 services? एक ही एग्जाम है ना 23 सर्विस का, तो इसका मतलब सारी सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ यूपीएससी की नज़र में एक कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए होंगे। वो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं? ये है एग्जाम की फिलॉसफी। जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए उसी तरीके का मैं एग्जामिनेशन प्रोसेस डिवाइड करूंगा। आपको उसी एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस सही है गलत है वो आपको वर्डिक्ट नहीं देना है, जैसा भी है वट एवर द एग्जामिनेशन प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ दैट एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड make yourself fit into that thing. If you will make your personality suited to that examination process, you are going to be successful. Simple. So objective of this class is to make you write down the mains and qualify the mains examination with brilliant colors. So what is required to qualify this? It has to be holistic plan. There has to be a complete plan. And I assume everybody is at the zero level. क्या? Zero level. Zero level. This is very good that everybody is at the zero level. इसमें पहले साइन करो, पहला काम करो। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है? What is the objective? फर्स्ट स्टेप, एंड लाइफ इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बहुत अच्छा ऑप्शनल में तैयारी कर ली, बहुत शानदार फिजिक्स में कर लिया और फ्री हो गए, फेल, तो क्या? विल यू गेट ए चांस टू राइट डाउन मेंस? नॉट एट ऑल। So step by step, and passing prelims, failing prelims will break your confidence level. Flunking prelims will make you lose your confidence. But passing prelims will not give you anything other than just entry to the mains. And in the same attempt you have to qualify mains, same attempt you have to qualify interview, which we call personality test. Correct? So it is a single step process. The step in which you will qualify prelims, same step you have to qualify mains, same step you have to qualify personality test. Correct? That means the whole preparation process has to be integrated. There cannot be isolated कि prelims की तैयारी कर ली, मैं कुछ नहीं है। जैसे फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल और थ्योरी में कोई अंतर नहीं है, मैं रोज यही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ना कि if your understanding is clear, if you understand theory nicely, then most of the numericals asked are nothing but the formula substitution problems. Exactly same way, there is no separate compartment for prelims, mains, but all the three are integrated process. Correct? That thing have to be borne in mind, that integrated. So preparation has to be done integrated. I will make a blueprint how to qualify this exam in first attempt. Whosoever wants to join under my guidance level, under my mentorship program, they have to take this is a separate program, altogether separate program. You have to register for that program. I will give you a blueprint how the success can be achieved in a single attempt. Only advantage of you is that you have come at the right time. June is the proper month according to me for starting this preparation to qualify this exam in first attempt. समझ रहे हैं सरदार साहब? समझ रहे हैं? आपको कल आशीर्वाद दिया मैंने, आशीर्वाद दिया ना। आशीर्वाद फलीभूत कब होगा? जब जो मैं कह रहा हूँ उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है। और कोई चीज़ में अगर वो डाउट हो तो आप कभी भी डाउट को मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हो सकता है उस डाउट से बाकी क्लास का भी फायदा हो जाए। तो मैंने पहली बात बोली कि होल प्रिपरेशन हैज टू बी व्हाट? इंटीग्रेटेड. We never prepare for prelims, we never prepare for mains, we never prepare for personal. We prepare all the three in a single go. For good personality,
your good communications are required. For good personality, good knowledge base is required. So knowledge base comes from where? From written part. Written part. Certain personality traits. First of all, there is a single exam for 23 services. Why there is a single exam? UPSC is not full. Because all these services requires a common personality traits. Some of these personality traits I will check by your prelims. Some of those personality traits I will check by mains. Some of those personality traits or combined I will see in your personality holistically. Same set of personality traits which I will be evaluating in prelims. Same set of personality traits I will be evaluating in mains. Same set of personality traits I will be evaluating in personality test. In personality test, 2 additional personality traits I am going to evaluate, which I cannot evaluate in the written examination process. Which I said very clearly yesterday. What are those 2 personality traits which I cannot evaluate by written part of the exam? That is humbleness and tolerance. Tolerance and humbleness in character makes one person very stronger personality. I said summary or crux of the all NCERT books is Gandhiji's talisman. That whole aim of your education process is that your education equips you a feeling of empathy. You should be able to develop empathy with the common person. Empathy जानते हो क्या होता है empathy? सिंपैथी जानते हो ना? सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है? बताओ मुझे व्हाट इज एम्पैथी. मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? बस. So I am asking what is the difference between sympathy and what is the difference between empathy, because Gandhiji's talisman which is published in NCERT, everybody knows what is Gandhiji's talisman published in NCERT books. Can anybody quote me what is Gandhiji's talisman published in NCERT books and which I consider as the benchmark of education or main objective of education policy? बताइए what is Gandhiji's comma inverted comma quote क्या है? Gandhiji says inverted comma that education should be able to wipe the tears from the last row and from the last person in the row. But last person in the row. Good. Same thing Deen Dayal Upadhyay calls Antyodaya. That is the philosophy of Bharatiya Janata Party also. Antyodaya, the person, last person of the queue. Uday hona hai uska. Kiska jo person, who is the person who is in the last part. So your education is directed in such a way that you are able to wipe out the tears from the person, last person in the row. So that is what is called empathy, sympathy, sahanubhuti. Empathy means you place yourself in the place of that person who is coming. So purpose of, what is the objective of civil services? Everybody is aware what is the state. You are going to govern in a state. What is the state? State is a legal concept. Article 12 of Indian Constitution defines state, but broader than that, Article 12 of Indian Constitution is a part of truth. Broader truth is what is the state? State is a legal concept in law. Any country. Sir, but state has been defined by different political theories very differently, right? State is a political, is a legal concept. Good. Whatever state Indian Constitution defines is a part of truth. Because broader definition of state will hold good for any state. Indian Constitution defines the concept of Indian state. What is state? You have to govern a state basically. State should have 4 ingredients. State is a legal concept. कानून, jurisprudence का concept है state. State के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं. क्या क्या चाहिए होता है? Land, I mean geographical area where state has to be established. Essential feature है. If any one of these features are missing, you cannot set a state. India is a state. United States is a state. Israel is a state. Palestine is also a state. So what are 4 basic ingredients for a state? And accordingly constitutions are written. That's I said, try to appreciate. I said definition of state is given in Article 12 of Indian Constitution. But I said that is a part of the truth. So you have to understand when I said is broader truth. Broader truth means that definition can hold good for any state. And that is what is legal concept. A state should have 4 basic ingredients. It should have a geographical area, I mean land. In that area there must be people residing. Essential requirement that land, it's not a barren
geographical area, it should also have people living in that state, or there must be idea that people will live in that. Like when we visualized Pakistan as a state in 1940 or Israel as a state much before when Israel was created, then the Jews of world over tried to establish a state of Israel in some geographical area. Where was that? West Bank. There was some geographical area already in the mind of people were there, geographical area. When Pakistan was visualized, Pakistan as a state was visualized, then there was some geographical area in the mind of the people. And there were certain kind of people, like Israel, who were the people, they were spread all over the world. Jews living anywhere in the world, they will come to reside, they will be natural citizens of the Israel. Similarly, Muslims will go to the Pakistan, on that basis Pakistan. So second ingredient of state was people. There must be people. Either people are living in that area or there is a plan, people will be made to live in that area. Correct? Then when those people have been set up, when the people are there, then those people will have why they are forming an state. Why? Why the basic purpose of a state? There must be certain basic purpose. Basic purpose is that if someone attacks them, then there must be some system by which they can be defended. Correct? So defense against external aggression is the primary function of the state. Another primary function is that even when defense is there, no one attacks, let us say, then what is the primary function of the state? Then the second function, primary one function is defense against external aggression. Defense against, so everywhere, wherever the states will be formed, there will be a defense. Defense will always be a central area subject. Always, anywhere, any constitution of the world, defense will always become the part of the primary function. Then other than defense, what is required? When the people are there, large number of people are residing in some geographical area, there will be disputes among those people. There must be certain mechanism to settle that disputes. What is that called? Establish internal law and order, or mechanism to deliver justice. Mechanism to deliver justice. Now what kind of justice are there? Even Indian constitution, justice must be social, economic, we are not. So two primary functions I have said. What are two primary functions for which a state is being formed? One is defense against external aggression. So defense will always be part of the central team. Then second is establish justice, law and order, mechanism to just. Here comes the role of bureaucracy. Where is the role of bureaucracy? Certain services are very important because without these services, state cannot function. One is defense. So army is always important. Any state will have armed services, defense. Then second thing will be mechanism to establish justice. Good, law and order. So here justice, judiciary comes judiciary, and other things, law and order means bureaucracy and political, permanent executive and political temporary executive. Temporary executive is politics, political executive, permanent executive is bureaucracy. Correct? So where does the bureaucracy fit into? Where the bureaucracy fit into? Primary objective of the state. Whatever the state is having objective, to realize the objectives of the state, bureaucracy is set. Put it together, I call this should have a government. State should have, third ingredient of the state is government. That government will have some defense mechanism, that government should have certain justice mechanism, that government should have certain law and order settling mechanism. They are primary functions. Good, if there is no fight, no external aggression, then what state should do? Then there are secondary functions of the state. Most of the states these days, modern states, are welfare states. They go focus on the welfare of the citizens. Good. So three basic ingredients of the state, because until unless you understand these things, you will not be able to understand the whole philosophy. Why? What are the common traits required for all the 23 services? Certain traits I will check by prelims, certain traits I will check by written mains part, certain traits are put together, every traits put together I will check by your personality test. And if you understand the entire philosophy, examination is cakewalk. Only good thing of you is that you have come into the month of June. This is the proper time for any person to qualify the exam in first attempt.
I think 1 year is required. 1 year is good enough for smart persons like the people who are sitting in my class to qualify this exam in first attempt, provided your guide is an excellent person like me. If you are working under my guidance, it should not be more than a year job to qualify this exam. The way I am going to tell you in today's class, although I have thought of 1 hour class, but maybe I will be taking little more time to set the all records straight, because this class I cannot take all off and on, and class is my only benefit from my side is class is getting recorded, so I will talk whatever could be. Maybe physics class will get delayed. Good. So what are the personality traits, common personality traits required for all of them? They have to realize the aim of the states, objective of the states. Why common traits? Because where is the role of civil service? What is the objective of civil service? Objective of the civil services is, what is civil service? Civil service is that service which is not military, which is not judicial. What is civil service? You go through the Oxford dictionary definition of civil service. What is civil? Civil is not military, civil is not judicial. Any service under the state which doesn't fall into these two categories, civil, defense and your judiciary. If it is not judicial service, it is not defense service, it is a civil service. Correct? So civil service is primary objective of civil service is to establish law and order and to realize objective of welfare state. Good. Judiciary is separate, like second, two organs, two primary functions of the state. Defense, that will be the subject matter of defense ministry, will be all defense service officers, will have the first primary objective now. Second primary objective is to establish justice and law and order. Justice is one, is judiciary, other one is your executive. Executive, two kinds, political executive and permanent executive. Political executive is leaders, political system, legislatures, and other is your bureaucracy, which is permanent executive. So your role fits into the second objective, primary objective of the state. Then other secondary objective is welfare state. So civil services also fills the gap whatever is required for welfare, to establish an ideal welfare state. So we will explain what are the welfare state in due course of time. But I keep on saying this is the proper time to start the whole preparation. What is the timeline? What should be the timeline for the people who are going to qualify this exam in first attempt? June. June is the proper month. From June onwards, first thing is you must know what are the cutoffs. I hope everybody must know what are the cutoffs of this examination. ठीक है जी. So मेरे पास 3 साल के कट ऑफ लेकर आया हूँ मैं, कागज में लिख के 3 साल के कट ऑफ्स है मेरे पास. सबको मालूम होने चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जीरो लेवल है मेरी नज़र में. 2024 में प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था? 2024, बिकॉज 25 का डेटा नहीं आया अभी तक. 25 का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया 25 का, लेकिन 25 का डेटा मेरे पास नहीं है. डेटा कहाँ तक है मेरे पास? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, जिसका रिजल्ट हमने डिस्प्ले कर रखा है. 24 में जीएस का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 87.98, 88 मार्क्स हैं पेपर 1 में. पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है. कितना कट ऑफ है? 87.98 जनरल कैटेगरी का. ओबीसी का कितना है? 87.28 है, 87.28 है. ठीक है. एससी का कितना है? 79.03 है. एसटी का क्या है? 74.23. जिस भी कैटेगरी के आप हो उसका कट ऑफ याद कर लो. जनरल का कट ऑफ कितना है? हमारा रेफरेंस लेवल जनरल का है, क्योंकि जनरल का कट ऑफ अगर क्लियर हो जाएगा तो बाकी वाले कट ऑफ अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे. तो जनरल का कट ऑफ है प्रीलिम्स का पिछले साल का 87.98, टू बी प्रिसाइज कर लें 88 है. कितना है? 88 है. 88 के लिए नेट क्वेश्चंस कितने करेक्ट होने चाहिए? 44. नेट कितने करेक्ट होने चाहिए? 44. चलिए, मेंस का कट ऑफ कितना है जनरल कैटेगरी का? टोटल मेंस कितने मार्क्स का? हाँ, एक सेकेंड, कितना मेंस है कितने का? प्रीलिम्स में कट ऑफ किसका था? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. ये कितने में से 87.88 जो बता रहा?
200 में से कितने 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200, जिसको मैंने थंब रूल में कह दिया 44 क्वेश्चंस करेक्टेड, T8 चाहिए था लास्ट ईयर, इस बार बढ़ गया लगता है। गुड। तो मेंस कितने नंबर का है 1750 का है, कितना 1750, उसमें से याद करो कि 50% कितना होगा, 50% कितना होना चाहिए 875, सबको मालूम है ना 875 इज 50%, करेक्ट। टॉपर के कितने मार्क्स थे इस बार 843, उससे 2 लोगों के ज्यादा हैं, 2 में से एक मेरा स्टूडेंट है 858, कोमल पुनिया के 858 मार्क्स आए हुए, लेकिन दैट इज आल्सो मच बिलो 50% ऑफ द मार्क्स, 50% नहीं है। 50% मार्क्स इन दिस एग्जाम मीन्स फर्स्ट रैंकर, ध्यान रखना। इसलिए ये मत सोचना कि 50% मार्क्स बहुत इजीली आता है, 50% मार्क्स हियर इज द मार्क्स ऑफ फर्स्ट रैंकर, you not even 50% of the first, because 50% in the written is 875. Good. So written का कट ऑफ कितना है, रिटर्न का कट ऑफ कितना है 24 में 729 है जनरल कैटेगरी का, 729, ये सबको डेटा याद होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना है 729, और फाइनल कट ऑफ कितना है जनरल कैटेगरी का, जो भी रैंक होगी, समझ लीजिए 350 रैंक है, 400 रैंक है जनरल की लास्ट, उसका कट ऑफ कितना है 947, फाइनल कट ऑफ कितना है 940। ये सब यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने डेटा से लिया है, यू कैन आल्सो क्रॉस चेक दिस डेटा। 2024 डेटा आई एम सेइंग, देन 23 बताऊंगा, देन 24 बताऊंगा, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। गुड। सो इंटरव्यू में द पर्सन हु इज कट ऑफ, जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना बताया 729, एंड फाइनल कट ऑफ कितना 947। इंटरव्यू व्हाट शुड बी द मार्क्स इन पर्सनालिटी टेस्ट फॉर दिस पर्सन टू क्वालिफाई 218 किसी का आता है क्या, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसका मतलब है जो कट ऑफ में हो कभी एग्जाम पास नहीं करता। मालूम पड़ गया आपको बात है, जो कट ऑफ में है, जो रिटर्न का कट ऑफ है, वो कभी लास्ट रैंक नहीं मिलेगी उसको, हर कैटेगरी में वही है। वट एवर द फिलॉसफी, सेम थिंग विल होल्ड गुड इन अदर कैटेगरीज आल्सो, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं। सो पर्सनालिटी टेस्ट मार्क्स फॉर द पर्सन हु वाज इन कट ऑफ, देयर मस्ट बी 218, and 180 is the average marks I have got you calculated for being in IAS. तो 218 is extremely, ऐसा नहीं आ नहीं सकते, आ सकते हैं, but they are extremely difficult. Rarest of rare है कि 218 किसी को आएगा, और आएगा भी तो क्या होगा, उसकी लास्ट रैंक आएगी। गुड। सो 739 से काम, 729 से आपका काम नहीं चलेगा, कभी पास नहीं होगा एग्जाम। एग्जाम पास होने के लिए कोई भी रैंक जनरल कैटेगरी के लाने के लिए आप जरा 218 आएगा नहीं, आप समझ लीजिए आपको 170 आ गया, तो रिटर्न में कितना चाहिए 947 में। अगर मैंने आपको इंटरव्यू में समझ 147 दे दिया, चले 147 दिया, समझ लिए 800 चाहिए। जब 800 मार्क्स आपका रिटर्न में आएगा तो आपकी रैंक कितनी आएगी 947 का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो आपको, देन यू विल बी गेटिंग 350 रैंक। गुड। 350 rank if you are getting 800, and interview I have given you 147. 147 is below average marks. Good. Good marks, average marks 167 जोड़ देता हूँ। 167 में कितने चाहिए 780 चाहिए आपको। 780 से अगर नीचे आएगा आपको रिटर्न में, तो आपको किसी भी कैटेगरी में, मतलब धीरे से बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में आपकी लास्ट रैंक भी नहीं आएगी। थंब रूल के लिए, if your score in mains is less than 780 marks, by even after getting 167 marks in interview, which are pretty good, 160, I got 105 marks in out of 300, good, 167 marks are pretty good marks। 180 आ जाएगा तो आईएएस बन जाओगे, 167 वाले भी आईएएस बन जाते हैं, बहुत सारे 167 वाले भी आईएएस बन जाते हैं, आप लिस्ट में देख लीजिए, उनका रिटर्न में थोड़ा बेटर होगा। गुड। So, but if you get 167 marks, which are pretty good, above average marks in personality test, then also you must have a score of 780। कौन सी रैंक आएगी 350 और 400, जो भी लास्ट जनरल की रैंक है वो आएगी आपको। ग्रुप बी की सर्विस मिलेगी, डानिक्स एंड डानिप्स, पौंडीचेरी सिविल सर्विस, वो सब मिलेगा आपको। गुड। सो 780 से नीचे तो कुछ होगा नहीं। सो वी शुड गो फॉर द सेफ स्कोर। सेफ स्कोर मेरा है, वट एवर आई से most of the time it is 825 plus। equation of success according to me is typically everybody whosoever comes in the class, good background, if they come from good background, everybody wants to get into IAS, then I have got DPV equation of success। search करोगे मिलेगी DPV equation। I plan, when I plan, then the objective is to score 850 marks। I will make you a strategy to score 850। if you are getting 850 marks, even when you get
147 in interview, then also you will get into IAS. 100 के अंदर रैंक आ जाएगी. 850 plus, even if you add 150 marks, 850 plus 150, 1000. About 1000 you will get 50 rank. है ना? यही कट ऑफ बताया था ना, सारे आपको याद कराया था, चेक कर लीजिए. So if you get 850 is only this year. How many people have got 850? Only 3. 843 first ranker, 858, and one person has got 863. That only 3 people throughout the entire country have been able to score above 8. In fact, above 850 is only 2. Above 850 is only 2. So don't think that 850 is very easy. So let us, if I little relax this standard and I give interview 165, then it must be 825. If you are getting 825 plus 165, then what is the total? 990? 990 or 1000? 990. Still you will get within 100. 80 की रैंक के अंदर आ जाएगी, within 80. 990 रैंक, 990 marks means लिखवाया था ना मैंने उस दिन आपको. Good. So for getting into IAS, that means within rank 80. If you want to get with rank within 80, your desirable score must be between 825 to 850. That should be the objective. 825 to 850 in the means. Good. So this how to score whole strategy session foundation course is based on 2 things: how to qualify prelims and how to score 825 and 850. Objective must be clear. इतना easy नहीं है. Easy तो यहाँ पर 729 लाना भी नहीं है, ध्यान रखना. 729 भी कितने लोगों का आता है? कितने लोगों का आता है? How many people is getting 720? 729 means getting a chance to appear at personality test. 2000 का नहीं आता है. 2000 तो सारे जनरल, मैं तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. सिर्फ 800 1000 मैक्सिमम. यह भी बड़ी बात देखना, पूरे देश में, इतने बड़े हिंदुस्तान में, इतने बड़े देश में 729 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? सिर्फ 1000 हैं. 1000. 15000 जो मेंस दे रहे हैं ना, उसमें सिर्फ 1000 लोग, 2000 टोटल होंगे. 1000 कैटेगरी के होंगे और 1000 जनरल कैटेगरी के होंगे. तो जनरल कैटेगरी के सिर्फ 1000 लोग हैं जिनको 729 आएगा. तो ये मत समझ लेना कि 720 लाइन कोई 729 सबका आ जाता है. 729 लाने के लिए भी उल्टा लटकना पड़ता है. और उल्टा लटकना वही है जो कल दिखा गया, सरदार जी डिफाइन कर गया ना. क्या है उल्टा लटकना? मैं तो अभी 8 से 10 घंटे ही बोल रहा था. मैं उसका वीडियो सुना हो तो कह रहा 15 घंटे पढ़ना होता है. कहा ना सरदार जी? यही कहा ना कल सेमिनार में कि 15 घंटे भी पढ़ा है मैंने. तो मैं तो अभी तक 10-12 घंटे का ही बात सोच रहा था, तो 15 घंटे भी कह के चला गया. इसको कहते हैं उल्टा लटकना. उल्टा लटकने का मतलब शीर्षासन करना नहीं है. उल्टा लटकने का मतलब है आप 4-5 घंटे पढ़ने की आदत लेके आए हो एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 10 hours, 12 hours, that kind of thing, average. See, someday you are, and every day 10 hours or 8 hours is not possible. Not possible for anybody. So someday you are studying 8 hours, then someday you are studying 15 hours also. Then only average, I am talking average of 10 hours. That kind of energy, latent energy is required. Correct? What are personality traits? Many services, Central Services Group A have got duty hours. फिर 9 बजे जाओगे, 6 बजे तक आ जाओगे. 48 hours a week. Good. But IAS का कोई ड्यूटी टाइम है क्या? कोई अगर प्लेन क्रैश हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, पुलिस का कोई टाइम है क्या? दे आर कॉल्ड ड्यूटी स्टाफ. 24/7 टाइम है. देयर ड्यूटी आवर्स आर 24/7. आदत है नहीं पहले बैठ के काम करने की, तो आपको सीधे जॉब दे दूंगा क्या मैं IAS का IPS का, जहाँ पर 24 घंटे की जॉब की रिक्वायरमेंट है. भाई साहब हमारी तरफ हम तो कर ही नहीं सकते जी. So this examination is testing your patience. This examination is testing your attitude to sit on table and work for 10 to 12 hours non-stop. If you can work for 10 hours sitting on table, definitely the need arises, you can work for 15-16 hours also. समझ रहे हैं? Because all India services typically they do not have fixed duty hours. CM साहब आ जाएंगे, कोई मिनिस्टर साहब आ जाएंगे, तो आपको नहीं जाना है. जाना नहीं जाना तो आप झंडे कर दिए जाओगे तुरंत ही. जाना ही पड़ेगा आपको. तो you do not have fixed duty hours. So that thing this examination will test. So it's not hard work, it is smart work.
smart work, but you should have capable of sitting on the table and working for long hours without getting tired. That kind of mental frame is required. And definitely good communication skills are prerequisite. You are the face of the country, face of the state. You can be sent anywhere to brief about the programs and policies of the government, anywhere. I can send you to UN, I can send you to the different head of states, Indian Foreign Service, same exam. By qualifying the same exam, you can get a chance to represent India. You can become an Indian representative to the United Nations. The girl who is representing Dubai, Ruchika Dubey or whatever, she was a 2019 or 2018 batch Indian Foreign Service from JNU. And she answered Pakistan. Such a smart person. What is her qualification? Who was representing India in the United Nations? Only she has qualified civil service examination. She was not representing there because she has got a degree from JNU. Not at all. She could have BA from any university. Only thing was that she has qualified civil services examination. Gives that much importance and exalted status that you are representing the entire country and countering the Pakistani Prime Minister, Pakistani propaganda on the UN. This only the service provides. Good. So objective is to score two things, two objectives: qualifying prelims and getting 825 to 850 marks. That is DPV equation of success. How to get this? So I was once again telling you, 1750 marks. What is the distribution of this 1750? There are 7 papers. सबको मालूम है भैया, वो आंसर नहीं करना है किसी को. मैं जब बोलता हूँ तो सिर्फ मुझे ही बोलना होता है, किसी को कुछ आंसर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सबको मालूम है. समझ रहे हैं? मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ और मुझे कुछ आंसर देना है और मुझे कुछ याद कराना है. दोनों चीज़ें हैं, याद भी कराना है मुझे. इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है. सबको यहाँ पर याद हो, एक क्वेश्चन ऑफ सक्सेस याद हो. 7 पेपर्स हैं. कितने पेपर्स हैं? 7 पेपर्स मल्टीप्लाइड बाय 250. गुड. और कम से कम कट ऑफ कितना चाहिए? 730. मतलब हम तो डिजायर कर रहे हैं 825. 739 के नीचे तो आपका कॉल ही नहीं आ रहा है. करेक्ट. तो सातों पेपर में से किसी में भी अगर 100 से कम आ गया, अगर सब में 100 आए तो कितना होगा? 700. कॉल नहीं आएगा तुम्हारा 700 में, तो 700 में तो कॉल नहीं आएगा तुम्हारा. अगर सारे पेपर्स में 100 आए तभी भी 700 होता है. गुड. किसी में अगर 60 आ जाए और एक में 140 आए तभी भी 700 ही हुआ, तभी भी कॉल नहीं आएगा. एक भी पेपर में अगर 60 मार्क्स आ जाए, एक में भी, क्योंकि 140 तो आउटस्टैंडिंग मार्क्स है. 140 एंड 150 आर आउटस्टैंडिंग मार्क्स. अगर किसी एक दो पेपर में 140 150 भी आ जाए, जीएस में तो आता नहीं है, अगर ऑप्शनल में 140 और 150 और दो पेपरों में तुम्हारा 60 आ जाए तो बेटा कॉल आएगा. क्या जरा कैलकुलेट करो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आएगा क्या कॉल? गुड. अगर एक पेपर में 70-80 आ जाए, चलो 75 आ जाए एक पेपर में, एक पेपर में सिर्फ, और दो में 150 आए, कॉल आ जाएगा. एक पेपर में आउट ऑफ 7 पेपर्स ओनली 1 पेपर आई कैन टॉलरेट 75 मार्क्स. 75 से नीचे अगर चला गया किसी पेपर में तो आपको जनरल कैटेगरी में भैया क्या नहीं होगा? इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा. इवन व्हेन 2 ऑफ द पेपर्स यू आर गेटिंग 145 मार्क्स, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में तो आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है. फिजिक्स में आ जाता है, मैथ्स में आ जाता है, केमिस्ट्री में आ जाता है. देयर योर ऑप्शनल प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. 140 आसान नहीं है. देन आल्सो यू हैव टू विन टॉप 5% ऑफ दैट सब्जेक्ट. 100 दे रहे हैं ना, 100 के 5 में हो गए तब 290 क्रॉस होगा. 145. अगर मैंने 290 दिया और तुमको मैंने 5 पेपर में, बाकी 5 बचे ना, 5 में से 3 में मैंने 100 दिया, 4 में 100 दिया आपको मैंने, 4 में. गुड. और एक में 60 दिया. कितना हुआ आपको? एक पेपर में 60 दिया सिंपल. 1 पेपर इज 60, ऐसे ही 60 कईयों का आता है. 460 प्लस 290 कितना? 750 हुआ ना सिर्फ. बड़ी मुश्किल से बेयरली यू आर स्क्रैपिंग थ्रू, बेयरली. देन आल्सो योर इंटरव्यू मार्क्स मस्ट बी अबाउट 190. Then also your marks must be 190. Thumb rule is, this examination is qualified. That is why my thumb rule all the time I keep on repeating. This is the exam of balanced personality. This is the exam of
balanced personality. You can never qualify this exam if your 2 papers go bad. Only little tolerance is there that 1 paper is your 75, 70 marks, only 1 paper. And if you get into IAS, if you want to get into IAS, every paper should have minimum of 100 marks. 100 से कम तो किसी में हो ही नहीं सकता. अगर 100 से कम आएगा तो ऑप्शनल बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता. 100, 100, 100 5 में आए, 500, ऑप्शनल में 300 आया. कितना हुआ अभी भी? 800 ही हुआ. 800 ही हुआ, 825 नहीं हुआ, 830 नहीं हुआ. 830 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पेपरों में कम से कम मुझे 110 और 115 लाना पड़ेगा, तब 825 होगा. समझ रहे थी? ये बात समझ लेना, क्योंकि फिजिक्स वालों को ये बात समझ में नहीं आती है. बड़ी बात बता रहा हूं कि 2 जीएस के पेपरों में 5 पेपर, जो 4 जीएस के और 1 ऐसे का है, कम से कम 2 पेपरों में सब में 100 लाना है. 100 तो कम सब में लाना है. जब ऑप्शनल में कितना दे दिया आपको मैंने? 300 दे दिया, जो फिजिक्स के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है. सिर्फ 2, 3, 5 लोगों को आता है 300 मार्क्स. Then also your all papers must have 100 marks and 2 papers must have 115 and 110. तब आपका 825 होगा. 300 ऑप्शनल में दिया आपको मैंने, 300 ऑप्शन, सारे पेपरों में 100 दिया. ऐसे में 115 दे दिया. एक जीएस के पेपर में इथिक्स में समझ लो 110 दे दिया. 825 हुआ कि 825. इससे ऊपर उठने के लिए ऑप्शनल में तो मैंने तुमको हाईएस्ट दे दिया है. Good. Last year, this year highest in physics is 318. Last year highest in physics was 311. Prior to that it was 297. Prior to that was 297. ममता यादव के 297 ही रैंक थे, 5वीं रैंक थी. 5th rank, 297 marks in the option, highest. This year also the person who had got 318 marks, rank तो उसकी 623 है. Because marks किसी पेपर में उसको 60 ऐसे ही आ गए 70-80 नंबर. फिजिक्स में तो 318 है, हाईएस्ट है. But still rank is very poor. Mark sheet is displayed. See his mark sheet. See his mark sheet. So is for scoring 825, even when I give you, which is not an average, I average marks I will get 275 in optional only. Then also you have to get about 125 marks, 115 marks, 110 marks in some of the GS papers. If you aim to get 300 marks in the optional, your GS has to be about 425. चाहिए ही चाहिए. 100. कल बोल के गया ना मेरे को कितना है? 422 आया. आपके सामने बोला ना कि ये कितने नंबर आया? 422. फिजिक्स में कितने थे? 164 प्लस 96. 164 पेपर 2 हाईएस्ट बना. 165 इज द हाईएस्ट इन पेपर 2. उसको आया कितना? 164. पेपर 1 में कितना आया? 96. 96 प्लस 164 कितना? स्टिल ही गॉट 162 रैंक. बट मार्क्स इन जीएस वर 422. He himself said. So जब तक जीएस में 420 से कम आता है, 420 430 से, कभी भी एग्जाम पास नहीं होगा जनरल कैटेगरी में. क्योंकि फिजिक्स में 300 रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, कैन नेवर बी प्लान्ड. आने को आ जाता है, 5-10 लोगों को आता है, लेकिन वो कभी प्लानिंग से नहीं आता. जिसको भी 275 प्लस आता है वो सब मेरे टाइम टेस्टेड होते हैं. एक भी बंदा 275 प्लस ब्रैकेट में फिजिक्स ऑप्शनल में नहीं घुसा जिसको मैंने प्रेडिक्ट नहीं कर लिया. समझ रहे कितनी बड़ी बात कह के जा रहा हूं? 275 प्लस मार्क्स उसको आता है जो मेरी टेस्ट सीरीज में लगातार अच्छा करता है. लगातार अच्छा करता है. जब टेस्ट सीरीज में अच्छा कर लेता है तो देश के अच्छे में पहुंच गया है, तब वो 275 प्लस के ब्रैकेट में घुसता है. 275 प्लस का एक ब्रैकेट है, जिसको 275 प्लस में हो गया उसको 300 प्लस भी हो सकता है. 250 में ही सारा उल्टा लटक जाना है. 250 के लिए भी तुम्हारा 85% पेपर करेक्ट होगा, तभी 250 आएगा. 125 अदरवाइज 125 मार्क्स भी नहीं आएगा. कोई नॉर्मलाइज स्कोर है. गुड. सो मैसेज इज दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स व्हाट? बैलेंस मार्कशीट. गुड. एंड माई प्रमाइज इज for good background candidates, scoring in GS is very easy, much easier than scoring in optional. I always scored outstanding marks in GS. Definitely my marks in optional was also good. I scored always outstanding marks in GS. And scoring outstanding marks in GS are much more easier for the persons having outstanding background.
अगर आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज के टॉपर हो किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आप टॉपर हो तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, जीएस में 430 नंबर लाना तुम्हारे लिए उतना ही आसान है जितना फिजिक्स में 300 नंबर लाना। समझ रहे हो क्या लाइन खींच दिया मैंने? अगर आप आईआईटी बॉम्बे से पढ़कर आए हो तो मैं क्या समझता हूं, 430 नंबर लाना तुम्हारे लिए उतना ही आसान है जितना फिजिक्स में 300 नंबर लाना। ये अच्छे बैकग्राउंड का मतलब है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं या जो मैं कहने जा रहा हूं आप समझने के कैपेबल हो। बहुत सारे तो उसको समझने के कैपेबल ही नहीं है। और दिस इज द एग्जाम ऑफ कंप्रेहेंशन, समझदारी का एग्जाम है। और हर पेपर में 110 निकालना है। तो मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूं क्योंकि बात तो मैं बहुत देर कर लूंगा, समय नहीं है। सो पहली बात, मार्क्स कितने मार्क्स चाहिए मेंस में? कम से कम 825। उससे नीचे की प्लानिंग में 825 की प्लान करोगे तो 800 तो आ ही जाएगा। 800 आ जाएगा तो सिलेक्शन तो हो जाएगा पहले अटेम्प्ट में। अगर पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया तो चलिए, फाउंडेशन, गुड फाउंडेशन इज लेड। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी एटलीस्ट, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव मिनिमम कट ऑफ स्टैंडर्ड मस्ट बी दैट आई मस्ट बी qualifying this exam in first attempt, or at least I must be going up to the personality test. That should be the objective. Minimum, if you are starting and if you are smart, only test up. And how many people are smart in the country? Only 14%. 14% लोग सिर्फ हैं देश में जो मेरी नजर में बहुत स्मार्ट हैं, जो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर जाते हैं। Otherwise, either they do not have access to the person like me. पहली प्रॉब्लम है, या तो अपने को बहुत होशियार समझते हैं कि मेरे जैसे आदमी की बात नहीं सुने, तो उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, या वो बहुत चतुर थे। गाइडेंस अगर उनके पास सही थी तो या तो बहुत चतुर थे, उन्होंने उस गाइडेंस को प्रॉपरली यूज नहीं किया। अदरवाइज इफ यू फॉलो द करेक्ट एडवाइस यू कैन बी ऑलवेज विद इन 14%। 14% कितना होता है? कम होता है कोई? 1000 का 14% कितना होगा? 140। जनरल कैटेगरी में कितने हैं? 70। 70 people will qualify in first attempt. And when you are the best crowd in the country, you consider yourself best crowd in the, why can't you be in 70? Why you can't? When the people who came, दोनों पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास किए। वो बच्चा भी पहली बार भी पास किया, 2023 का ही है अभी। और उससे पहले तो अभिषेक आया था, वो भी 23 का ही है। They passed the exam in first attempt। 2 बार प्रीलिम्स फेल हो गए तो उससे क्या हो गया? He flunked the prelims once because he didn't come for me. He didn't come for my this seminar. If you would have followed my advice, first attempt you could have qualified the pre. What is there in the pre? 15,000 में नहीं आ सकते भाई साहब, फिर बेस्ट क्राउड क्यों हो? फिर बेस्ट क्यों हो यार? अगर तुम इस देश के 15,000 में नहीं आ सकते, गधे घोड़ों के बीच में कंपटीशन है, तो तुम अच्छे क्यों हो? तो ये समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, कैसे करना है। कुछ नहीं करना है यार। कितना कट ऑफ है? 88। ठीक, चलिए इस बार बढ़ गया, समझ लीजिए इस बार 95 हो गया। समझ लीजिए, मेरी समझ में इस बार बढ़ गया, 94 हो गया। 94 कट ऑफ है। 94 में कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए? 47 नेट। नेगेटिव मार्किंग भी है ना 1/3। गुड। थंब रूल इन प्रीलिम्स इज दैट यू शुड मेक 65 क्वेश्चन करेक्ट। आंख बांध कर लो। मेंस का कट ऑफ कितना? कम से कम 825। 825 की प्लान कैसे 825 प्लान किया मैंने? 300 ऑप्शनल, 300 ऑप्शनल, 525 टोटल्स। 525 में 100 2-3 पेपरों में, और एक में 115 110, मतलब आपको 100 चारों में एवरेज लाना है, एक में 125 लाना है। और किसी में 100 नहीं आता है तो दूसरे में 110 लाके कंपलसेट, मतलब 525 आपको लाना ही लाना है। ऑप्शनल में आउटस्टैंडिंग दिया है। ऑप्शनल में क्या दिया है आपको? आउटस्टैंडिंग दे दिया, 300 मार्क्स देके आपको करेक्ट। 300 अगर मैंने दे दिया ऑप्शनल में तो टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए? 525। 525 में इसका मतलब है आपको किसी पेपर में 125 आना है, बाकी सब में आपको 100 आना है। तो इसलिए 100 लाने के लिए भी सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं मेंस के? 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 20। 20 क्वेश्चन आर देयर। 20 कैसे होते हैं? 20 कैसे होते हैं? 10 मार्कर्स, 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स। 10 मार्कर कितने में? 150 वर्ड्स में। 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स मीन 2 पेजेज। 150 वर्ड्स मीन्स 2 पेजेज एंड 250 वर्ड्स मीन्स 3 पेजेज। समझ में आया? एक पेज में 100 वर्ड लिखे जाते हैं करीबन। एक पेज में करीबन 100 वर्ड्स लिखे जाते हैं। इफ योर गुड हैंड राइटिंग, नाइस लिखना होता है। करेक्ट। ये थंब रूल मालूम है? 40 क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर अबाउट 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन टू बी इन हाउ मेनी वर्ड्स?
4000 वर्ड्स। अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपने 20, 25, 30 पेपर नहीं लिखे हैं, तो एग्जाम में यू विल नॉट बी कैपेबल ऑफ राइटिंग 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स नीट एंड क्लीन। एंड हियर योर आंसर हैज टू बी नीट एंड क्लीन। बोर्ड के अगर टॉपर हो, बोर्ड में टॉपर हो ना, बोर्ड के अगर टॉपर हो तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? कोई किसी को इंग्लिश में हाईएस्ट आए हो 99, 98, किसी को इंग्लिश में आए? यहाँ पर 12th क्लास के बोर्ड में किसी को इंग्लिश में हाईएस्ट कितने हैं? 98 हैं, है ना? 98 के लिए कैसा लिखा था तुमने? काट पीट करी थी क्या? नहीं करी थी ना? बहुत नीट एंड क्लीन था ना? हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए बहुत। गुड। जैसे बोर्ड में 98 लाने थे, वही यहां पर जीएस में 100 मार्क्स लाने के लिए करना पड़ेगा। योर हैंड राइटिंग हैज टू बी वेरी गुड, ऑल इंफॉर्मेशन, एवरी आंसर हैज टू बी होलिस्टिक, तब 100 मार्क्स क्रॉस होता है, अदरवाइज 100 क्रॉस नहीं होता है। गुड। सो 10 मार्कर्स हैज टू बी रिटन इन 150 वर्ड्स, मैक्सिमम इन 2 पेजेस, एंड 250 वर्ड्स 15 मार्कर्स, 10 15 मार्कर्स, दैट हैज टू बी रिटन इन 250 वर्ड्स 3 पेजेस। करेक्ट? इतने में हो जाएगा। ये सब थंब रूल है। एंड प्रीलिम्स में कितने? 94 कट ऑफ है इस समय। 94 के लिए मैंने एकदम थंब रूल है कि 65 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। कितने? 65 करेक्ट। कितने गलत हो गए? 35। 100 का अटेम्प्ट कराना ना, 100। 5 अगर छोड़ना चाहते हो तो चलो छोड़ दीजिए। 95 तो फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए। करेक्ट? 95 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। 70 क्वेश्चन क्यों फेल हो गया कल? 2 लोगों को तुमने सुना, अभिषेक शर्मा को सुना, प्रीलिम्स के बारे में सुना तुमने, स्ट्रेटेजी सुनी उसकी, और ऐसे ही तुमने उसको कल सुना। पहले अटेम्प्ट में प्री फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? मेरी नजर में फंडामेंटल मिस्टेक करी। और भी कई सारे मुझे ऐसे बताते हैं प्रीलिम्स फेल हो गया। फंडामेंटल मिस्टेक क्या करी? हाउ मेनी क्वेश्चंस ही कुड अटेम्प्ट? ओनली 70। Only 70. Abhishek also said that in first attempt my speed was poor, so I couldn't attempt all the questions. Good. So according to me, minimum questions which must be about 90 questions अगर आप करोगे, 90 good, 90 even if your 60 are correct, you are going to qualify prelims safely. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फिर भी पास नहीं होगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो फिर भी पास नहीं होगा। 104 जाता है कट ऑफ उसका, 104। गुड। इफ 60 क्वेश्चंस आर करेक्ट, 30 आर रॉन्ग, नेट कितना? 50 हुआ यार। 30 रॉन्ग, 1/3, 10 गया। 60 - 10 50, नेट 50 हुआ ना। आईएफएस का कट ऑफ नहीं पास होने जा रहा। आईएफएस इज 100+, 94 जैसे इस बार है ना। आईएफएस 102, 103 ही होगा जब आएगा कट ऑफ 1 साल के बाद, तो देख लेना। IFS cutoff is always 10 more, and physics student can qualify IFS also, Indian Forest Service. Forest Service cutoff is very high. Forest Service cutoff is high. So minimum question should be correct is 60. Minimum 160, 65 होगा तो बहुत अच्छा। पूरे I am saying that attempt all the 100 questions, 100 करने जा रहे हो, उसमें 65 अगर करेक्ट हो गया, 35 रॉन्ग हो गया, -12 कर दिया। 35 डिवाइडेड बाई 3 अबाउट 12, 65 - 12 53 में आईएफएस भी पास हो जाएगा सेफ। एवरी ईयर अबाउट 1200 पीपल क्वालिफाई आईएफएस आल्सो। मेनी पीपल आर नॉट इवन eligible for writing IFS because IFS minimum eligibility criteria is what? Engineering degree or science degree. So not everybody can fill the form of IFS. तो इसका मतलब 1-1.5 हज़ार लोग और भी होते होंगे साइंस के अलावा, बाकी लोग भी होते होंगे जो 106 क्रॉस करते हैं। 106 क्रॉस करने वाले तो फॉरेस्ट पास करता है, उससे नीचे वाले को तो फॉरेस्ट का कॉल नहीं आएगा। इसका मतलब जो 15,000 लोग हैं, 15,000 लोगों में से कम 10 से 15% लोग हैं जो 105 क्रॉस करते हैं इस एग्जाम में। कम से कम 10% लोग हैं ऐसे हु सेवर इन 10 परसेंटाइल, टॉप 10 परसेंटाइल, who are going to qualify, who are going to get 110+ मार्क्स। तो बॉर्डर में क्यों रहना यार? ये सोचना है क्यों कि मैं 90 को मार्क्स कर आऊं। अभी बहुत सारे रोते हुए मेरे पास आ रहे हैं, रोज रोते हुए आ रहे हैं कि सर हमने तो 94 किया और फेल हो गए। मैंने कहा तुमको किसने कहा था कि तुम 94 ही करके आओ? कट ऑफ तो हमेशा 5-10 क्वेश्चन ऊपर ही तैयार करना पड़ता है। कई सारे आ रहे हैं मेरे पास जो प्री फेल हो गए
और कह रहे हैं 94 सही है मेरे पास, मेरे 93 करेक्ट है। कल और पूछ लूंगा, कल जब मेरे मेंस के यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी इतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे मेंस की टेस्ट सीरीज में। कल आगे देख सकते हो 10 बजे, 10 बजे कल यहाँ पर मेरी टेस्ट सीरीज है ITDS, इतने आएंगे। कल मैं यही पूछूंगा कट ऑफ कितना, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो टुमारो आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द कट ऑफ दिस ईयर फॉर इन, क्योंकि मेरे पे तो कई सारों को IFS भी क्वालिफाई हुआ होगा हर बार। एवरी ईयर मेनी पीपल क्वालिफाई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इस बार भी 8-10 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पास किए हैं। विपुल गुप्ता is also qualified Indian Forest Service. Many people qualify Indian Forest Service. So target must be that you should make about 65 questions correct. 65 questions correct होने के लिए you have to attempt the entire paper. 35 गलत हो गए, 65 करेक्ट हो गए, तब भी हो जाएगा। 65 करेक्ट होने के लिए मैंने आपको फिलॉसफी बताई थी, अगर 45 क्वेश्चंस आप जानते हो, इफ़ यू नो 45 क्वेश्चन करेक्ट, 45 क्वेश्चंस you know for sure that my 45 questions are correct, then you can easily get, by attempting all 100 questions you can reach up to 65. Good. So now I will not focus much into these all statistics parts. Everybody knows this is statistics. How to score this 45? My focus is how to score this 45 within this space of time. So first strategy is, first timetable is that within this time, because the examination process is holistic, qualifying prelims is nothing, gives you the entry to the mains exam. Therefore you must prepare for the mains first. Mains first, correct? So first thing is, that is the proper time to complete the optional. Every topper time tested strategy for the people qualifying in first attempt is that they first start for the mains and they start with the optional. समझ में आ गया पहला स्टेप? इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बड़े होशियार हो, you are a smart crowd that you have started with your optional. Optional must be completed within first 5 months, and that should be completed in such a way that if the need arises within 2-3 months I will be able to replicate and will get 275 plus marks. इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। 275 मार्क्स लाने लायक तैयारी अभी 5 महीने में ऑप्शनल की होनी है। वो तभी होगी जब आपने सारी ट्यूटोरियल सीट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो सब अच्छे से सॉल्व कर लिए साथ साथ, तभी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। टेस्ट सीरीज में कम से कम आपको 100 क्रॉस करना चाहिए, 40% मार्क्स अभी क्रॉस करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर 125 प्लस इन द रियल एग्जाम। दैट इज द प्रीरिक्विजिट। सो फर्स्ट प्रिपरेशन इज डन फॉर द ऑप्शनल्स, करेक्ट? and you are doing full time preparation. Everybody whosoever is coming to the class, that means they are doing full time preparation. So full time preparation, what hours I expect? कि कितने घंटे पढ़ते होगे? कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। 4-5 घंटे पहले स्मार्ट स्टूडेंट हो, पहले से स्मार्ट स्टूडेंट, इसका मतलब 4-5 घंटे पहले से पढ़ने की आदत है। जिस तरीके की क्राउड बैठी हुई है, दैट मीन्स आई विजुअलाइज दैट यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स ए डे। अब 5 आवर्स को धीरे से बढ़ा के 7-8 घंटे करना है, 8 घंटे रोज करना है। 8 घंटे में 5 घंटे ऑप्शनल लगा दिए, 3 घंटे जीएस पढ़ लिया। सो क्या करना होता है, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी मस्ट बी कंबाइंड। फर्स्ट स्टार्ट फॉर द ऑप्शनल एंड डू ऑप्शनल इन सच ए वे दैट आई एम गोइंग टू गेट 275 प्लस मार्क्स बाय 2 months रिविजन, 3 months रिविजन, आई विल बी एबल टू गेट 275 marks in the optional. Good. And develop an habit for 2-3 hours every day, maybe 5 to 6 hours, 5 hours someone 5 hours, someone 6 hours for the optional to achieve 275 marks. अब बाकी जो 2-3 घंटे पढ़े हुए हैं, 2-3 घंटे रोज क्या करो? जीएस पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। और जीएस कैसे पढ़ना? जीएस में क्या पढ़ना है? जीएस में 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। आई विल टेक ए सेपरेट क्लास, क्योंकि आज मेरा टाइम कम हो रहा है। आई विल नॉट टेक ए क्लास फॉर हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर, इट इज itself is a full class. So next target is that within these 5 months, when your focus is doing optional up to 275 marks. What is prerequisite in optional for 270? Any optional, not only physics. What is prerequisite for getting 275 marks? You have written all the answers of the previous years under the guidance of some expert, so that expert can see your answer. अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्लास के साथ टेस्ट सीरीज इनबिल्ट है ना, टेस्ट सीरीज जब मैकेनिक्स खत्म होगी मैं टेस्ट सीरीज बता दूंगा आपको, तो आप आंसर लिखोगे ना, तो आंसर का आंसर तो मॉडल आंसर तो बताऊंगा ना आपको, मॉडल आंसर कैसा लिखना चाहिए आपको। आपने लिख के दिखा दिया, अगर आपका 100 नंबर से आया तो मैं आपका आंसर देख के बता दूँ वॉट एवर द एडिशंस एंड डिलीशंस कैन बी डन। सो अंडर एक्सपर्ट what kind, because answer writing itself makes a difference of 10 to 15% of marks in the science subjects, and humanities subject it can have much more weightage. How, what should be the model answer, how the model answer must be presented in this exam, even in science subjects, that makes a difference of 10 to
15%। और कहने में जितना सरल, 10 में से 1 और 1.5 नंबर ही बढ़ा रहा हूं। करेक्ट आंसर आई कैन गिव यू 5.5, फॉर क्वालिटी आंसर आई कैन गिव यू 6.5, 7 भी दे सकता हूं। आई गिव टू 7 मार्क्स आल्सो। गुड। सो फर्स्ट टारगेट इज टू डू द ऑप्शनल विद इन 5 मंथ्स। हमारा कोर्स है 5 महीने में खत्म हो ही जाएगा, A to Z खत्म हो जाएगा फिजिक्स में। सिर्फ आपको पढ़ना है और टेस्ट सीरीज देनी है। 5 घंटे रोज अगर पढ़ लोगे, 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, 2 घंटे की क्लास 3-4, तो ऑप्शनल इतना हो जाएगा कि 275 नंबर तक आ जाए। फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट इन दैट सेंस। गुड। नाउ द टारगेट इज दिस क्लास वट एवर आई वाज टेकिंग इज फॉर GS. हाउ टू गो अबाउट द GS in this time when your focus is optional, then also you must develop at GS general studies. What is it holistically? What is the general studies? क्या parts हैं उसमें? prelims में क्या क्या है? What is there in the prelims? Only 5 books, only 5 courses. क्या क्या है 5? चले पहले पढ़िए। GS पेपर 1 में क्या क्या है? हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड कल्चर है, और ज्योग्राफी है। यही है ना मेनली, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी। प्रीलिम्स में भी दोनों है। मींस इंटायर पेपर 1 आप मेंस इज कॉमन एंड बोथ द थिंग्स आर स्टैटिक। बताइए भाई साहब, मेंस का जो पेपर 1 है, याद कर लीजिए अगर नहीं मालूम है, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, और थोड़ा सा पार्ट उसमें सोसाइटी का है, वो करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज द करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। Correct. So paper 1 of GS mains is having 20 questions are coming from history and culture and geography. 2-3 questions maybe from the society which I will cover in somewhere or the other. Correct. ये दोनों पोर्शन प्रीलिम्स में है। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं? 15 आते हैं। ज्योग्राफी के कितने आते हैं? 20 आते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंट भी जोड़ लूँ ज्योग्राफी में, मोस्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। इफ आई काउंट ज्योग्राफी एंड साइंस टेक में इन्वायरमेंट के पार्ट्स को डाल दूं, then geography and environment is having about 30 questions. Geography including environment will have how many questions? 30 questions. And history will have about 15 questions. 2 सेक्शन से पेपर 1 के मेन से प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं? 45। 40 तो कम से कम एनी ईयर गो एंड क्रॉस चेक। ज्योग्राफी, environment and ecology put together will have about 30 questions, and history will have 10 to 12 questions, about 40 questions. 40 questions are coming from paper 1. So if you are doing 2 books nicely, then paper 1 of GS is prepared and it is totally static. It is totally static, and you take care of about 45 questions in the prelims. 3 सेक्शन खत्म कर दिए मैंने आपके। हिस्ट्री खत्म कर दिया, ज्योग्राफी कर दिया, इनको खत्म कर लो शुरू में ही। चलिए दूसरे पेपर में क्या है? जीएस के पेपर 2 में क्या है? पॉलिटी है और इंटरनेशनल अफेयर्स है। IR इज करंट अफेयर्स। सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी सबसे आखिरी में पढ़ाते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। इन द प्रीलिम्स देयर आर अबाउट 15 क्वेश्चंस। पॉलिटी इन प्रीलिम्स देयर आर 15 क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ दोज 15 क्वेश्चंस आर करंट अफेयर बेस्ड, और वट एवर द क्वेश्चंस इन पॉलिटी आर आस्क्ड इवन इन मेंस, they are also connected with the static part, but the questions what are they testing? Current affairs. Polity is a very dynamic paper. Polity and IR paper 2 is a dynamic paper where you have your knowledge and your current affair base and your whatever textbook you are studying, that plays a great role. Paper 2. So I am focusing on polity last. सबसे आखिरी बता रहा हूँ. Okay, I will tell you which sequence you should proceed. Good. What is paper 3? Economy, science and tech. इन्वायरमेंट तो मैंने डाल दिया ना, पहले वाले में ही कर दिया लिटिल बिट। गुड। सो पेपर 3 इज नथिंग, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। ये प्रीलिम्स में है दोनों। प्रीलिम्स में क्या क्या था? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट डाल दिया वहां पर, एंड देन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस टेक। फिनिश्ड। प्रीलिम्स खत्म हो गया। प्रीलिम्स खत्म हो गया। पेपर 3। सो इफ यू पेपर 3 इज आल्सो मोस्ट ऑफन डायनामिक। इकोनॉमी इज व्हाट? Current affair based, few static questions, but definitely static part you must know. Static part you must know. But typically whatever the economy is asked in the this year many questions are static. This year more questions, more number of questions which have come are static. Otherwise most often whatever the questions are asked from economy are current affair based. Mains is always current affair based. Good. So 3 papers if you go by only these 5 disciplines. What? History, geography, polity, economy and science tech. 5, only 5. Whole prelims paper 1 is settled. Other than 6th is current affairs. 6th is
करंट अफेयर्स, फिनिश्ड, यही है। गुड, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? Geography is the foundation of everything. For governing state, what is the essential, what is the first element of state? Geography, geographical area. Geography होगी तभी उसकी कुछ हिस्ट्री होगी, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी किसकी होगी? इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, सो इकोनॉमी ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम द ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी इज फंडामेंटल। उसी एरिया की हिस्ट्री होगी, उसी में कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होगा तो पॉलिटी होगी। सबसे बेसिक क्या? ज्योग्राफी। गुड, सो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम, एंड यू डू नॉट हैव, मोस्ट ऑफ यू डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी, सो यू मस्ट स्टार्ट। पॉलिटी इज द सिंपलेस्ट, जीएस के सारे पोर्शन में पॉलिटी इज द सिंपलेस्ट, सबसे सरल होती है, सबके क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। पेपर 2 भी पूरा पॉलिटी का, इसलिए पॉलिटी को सबसे आखिरी में नवंबर दिसंबर में पढ़ना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आल्सो current affair based, correct? Polity is the easiest, so polity is last priority for me. Science tech, your background, so science tech is also second least difficult. तो सबसे ज़्यादा difficult साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या है? Geography and economy. You must start from economy. My target, my plan is that you must start from इकोनॉमी। 1 मंथ, 1 महीने में इकोनॉमी खत्म हो जानी चाहिए। इनफैक्ट 5 कोर्स हैं, सिर्फ 5 कोर्स हैं। जीएस के 3 पेपरों में कितने हैं? 3 कोर्स पेपर्स में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कितने किताबें हैं? 5 ही तो बनी ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, 5 ही किताबें हैं। 2-2 महीने हर एक के लिए लगा लो, 10 महीने में खत्म। मास्टर हो गया कि नहीं? 10 महीने, जून से लेकर 10 महीना कब तक गया? अप्रैल तक गया। अप्रैल तक पूरा फाउंडेशन हो गया तैयार कि नहीं हो गया? ऑप्शनल पहले ही तैयार हो गया, ऑप्शनल तुम्हारा नवंबर तक तैयार हो गया। 2-2 महीने, अब जो ऑप्शनल के लिए 5 महीने कर रहे हो उसमें 2 लाइट कोर्स रख लो। कौन कौन से लाइट कोर्स? इकोनॉमी, फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए क्या कहा मैंने? इकोनॉमी बहुत इजी टू फॉलो है। For physics student it is easiest to follow economy and geography. Geography is also many of the time science subject. तो जो 4 महीने ऑप्शनल वाला है, जिसमें आपका फोकस 5 महीने 6 महीने ऑप्शनल पढ़ना है, इस 4 महीने में कौन सी किताब खत्म करनी है? इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। ये 2 खत्म हो गया। जून से चालू कर रहे हो, जो मेरे पास 14 तारीख से पढ़ने आ रहे हैं, 14 है ना, 14 जून, 14 जुलाई तक इकोनॉमी खत्म हो जानी चाहिए। 14 जुलाई तक इकोनॉमी खत्म हो जानी चाहिए। कैसी खत्म हो जानी चाहिए? खत्म होने का क्या मतलब है? खत्म होने का क्या मतलब है? यू आर कैपेबल ऑफ आंसरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, यू आर कैपेबल ऑफ आंसरिंग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस। फाउंडेशन कोर्स है, ऑल 14 ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस। इतना कर लोगे तो इकोनॉमी खत्म हुई 2 महीने में। अगले 2 महीने 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 सितंबर तक क्या खत्म? ज्योग्राफी खत्म। रिवाइज करते रहो। 2 महीने बहुत है, 2 महीने में इकोनॉमी बहुत है, 2 महीने में ज्योग्राफी बहुत है। फिर 14 सितंबर से चले जाओ, तीसरी किताब पढ़ लो, तीसरी समझ लो, पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लेते हो। डायनेमिक पढ़ा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, करेक्ट। हिस्ट्री तो स्टैटिक है, आखिरी में पढ़ना जाके, जनवरी से हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है जी। अब आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 14 नवंबर तक आपका पॉलिटी भी खत्म हो गया। गुड, 14 नवंबर तक पॉलिटी आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका है। ऑप्शनल आपका 5 नवंबर तक खत्म हो चुका है, ध्यान रखना। 14 नवंबर तक आपका ऑप्शनल भी खत्म हो गया है, और आपकी अच्छे से रीडिंग 3 किताबों की हो गई है, 3 बुक्स। कौन कौन सी? इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, करेक्ट। अगर आप मेरे कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो 3 किताबें मैं खत्म करा दूंगा, 3। कौन खत्म कराएगा? मैं। 3 कितने महीने में? जितने महीने बताए मैंने, 6 महीने के अंदर, करेक्ट। उसके बाद हिस्ट्री, और उसके बाद बाकी उसके बाद हिस्ट्री, और उसके बाद सबसे आखिरी में साइंस एंड टेक। खत्म हो गया फाउंडेशन कोर्स। अब कैसे खत्म होना, जस्ट एक बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए होता है, और लोग फॉलो नहीं करते। प्रॉपर स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? मेरे जैसे आदमी को आंख बंद करके फॉलो करने का क्या मतलब है, ये समझ जाना। भी सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी की मेरे पास सिर्फ 2 किताब है, सिर्फ 2। जादूगर के पिटारे में सिर्फ जादूगर का पिटारा है, देखो खोल रहा हूँ।
ये पिटा रहा है। इतनी किताबें याद कर लो, पढ़ना नहीं है, क्या करना है इनको, याद, कमिट टू मेमोरी। सारा फाउंडेशन लेट डाउन हो गया, सारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 किताब और पढ़नी है इसके साथ। इसके बाद और क्या पढ़ना है, सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वही करना है। सिर्फ 2 किताबें और पढ़नी है, सिर्फ 2। लोग कुंजियां पढ़ते हैं, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं पढ़ते हैं। होशियार आदमी की बात नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं मूर्खों की, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है, पास नहीं किया, उनको सुनते हैं, इसलिए बार बार फेल होते हैं। बार बार फेल होगे अगर फिर से नहीं सुनोगे तो। सिर्फ 2 बड़ी किताबें कह रहा हूं, ये इस टेक्स्ट बुक के बाद ये फाउंडेशन कोर्स की किताबें हैं, अभी खोलूंगा मैं इसके। उसके बाद सिर्फ 2 किताबें और पढ़ाऊंगा, इंडिया ईयर बुक, भारत 25। इसको भी पूरी तौर पे क्या करना है, याद करना है, और फिर इसको कैसे डेटा का यूज करना है वो समझना है। कंप्रेhension का गेम है। सारे करंट अफेयर्स आंसर हो जाएंगे, मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। दिस इज द ओनली बुक विच इज ऑथेंटिक। और हमारे टाइम के जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया करते थे, 1 ऑल इंडिया रैंक 1, टॉप 10 की जो रैंक लाते थे, उनकी ये मस्ट रीड है, मस्ट रीड। आज भी कह रहा हूं, मस्ट रीड बुक है इंडिया ईयर बुक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है। प्रूव करके बता रहा हूं, इससे अच्छा कोई बुक हो ही नहीं सकता। इसकी जो रिपोर्ट लिखता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो वेबसाइट में लिखी हुई है, 1 साल में क्या हुआ है, जो सेक्रेटरी लिखता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास भेजी जाती है। देन इट इज कंपाइलेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग इस किताब को कंपाइल करते हैं और लिखते हैं। इसको कम से कम, इसके लिखने में कम से कम 20 IAS ऑफिसरों की नजर से किताब गई होगी, जो अभी करंटली सर्विंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट इसमें भेजी है। तो कैसे लिखा गया है, किसने लिखा है, समझ गया किस कैलिबर के लोग ने इस किताब को लिखा है। और जो आपके कोचिंग के नोट्स लिख रहे हैं, उनका क्या लेवल है। जो आप लक्ष्मीकांत को पढ़ के खुश हो रहे हो, उस लक्ष्मीकांत का क्या स्तर है। गुड। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, ये बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज, केस स्टडी के साथ। किसके साथ, केस स्टडी के साथ। सारे 395 आर्टिकल याद होने पड़ते हैं, मुझे याद हैं। मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1 घंटे में पढ़ा सकता हूं, याद करा सकता हूं, सिर्फ 1 घंटे में। आई एम कैपेबल ऑफ लेटिंग यू रिमेंबर ऑल द कंटेंट इज हाउ मेनी पेजेज, हाउ मेनी आवर, 1 आवर। 1 घंटे का काम है मुझे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल क्या करा देना, याद। क्यों करा देना, क्योंकि मुझे याद है, खुद को याद है। और जब बताऊंगा ना तो लगेगा सर को सब याद है। और सर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं, सर को सब याद है। स्टूडेंट लाइफ में सर ने सारा याद कर लिया था। और याद करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। सर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट रहे हैं, सर को मालूम है कैसे चीजों को किया जाना है। तभी मैंने कहा कि मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, पहले लॉ की 3 क्लास कराऊंगा आपको कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट के प्राइमरी फंक्शन क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है। मैं लॉ पढ़ाऊंगा पहले, जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सबसेट, बहुत छोटी चीज है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ समझना पड़ेगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कंट्रीज के लिखे जाते हैं। तभी कभी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लूंगा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लूंगा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चुरा के लाऊंगा, एंड आई विल मेक यू लर्न विद इन 1 क्लास हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? अंबेडकर, सबको मालूम है। लिखा किसने? मेरे पास एक किताब लिखी हुई है अब राम बहादुर राय की, उसमें अंबेडकर ने कहा, खुद का स्टेटमेंट कोटेड है पार्लियामेंट में, कि किसने लिखा, हु इज क्रेडिटेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन? ही वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीनों गलत। चलिए और बताइए। आजकल व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है उनका नाम। आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे ना 7 मेंबर? कौन कौन से थे? दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रेडिटेड टू BN राव। सर BN राव क्या थे वो? इंडियन सिविल सर्विस। मतलब यही एग्जाम जो तुम पास करने जा रहे हो। और ही वॉज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द कमेटी हु हैज ड्राफ्टेड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन।
और मेरी समझ में वो कोई ह्यूमैनिटीज वगैरह के, मेरी समझ में तो फिजिक्स के स्टूडेंट थे। मैं तो जस्ट फॉरगेट कर रहा हूँ इस क्वालिफिकेशन, जस्ट सर्च करके देखो बी एन राव की क्या क्वालिफिकेशन थी, बट ही वाज इंडियन सिविल सर्विस, दैट इज श्योर। B.N. Rao drafted this constitution. Good. That means B.N. Rao understood the whole thing, how the constitution has to be written. And what was his qualification? Indian civil service. अगर आप IAS पास कर जाओ और आपको ड्राफ्टिंग कमेटी में डाल दूं, तो आप लिखने में कैपेबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? You must be capable of drafting the constitution. So you must know what is the philosophy of the constitution, how constitutions are interpreted, why constitution should be written, what is the role of constitution, that is called constitutional law. Indian constitution is a part, सबसेट है, दुनिया भर के इतने कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। So you must know how to govern an state. स्टेट के गवर्नेंस में क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, स्टेट क्या है, पहले तो स्टेट जैसे वैसे लिखा है, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 395 आर्टिकल अपने आप लिख जाएंगे और बहुत सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाएंगी, आपका खुद का कंक्लूजन हो जाएगा, ओरिजिनल है। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, कहते हैं ना फेडरल है, स्टेट यूनिटरी भी है, तो फेडरल क्यों है? व्हाट इज द प्रूफ? कहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत में क्यों है फेडरल? डेफिनेशन लिखी होगी कि दो टू सेट ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर, वन सेट इज एट द सेंटर यूनियन, अदर सेट इज एट द गवर्नमेंट इज एट द स्टेट, सो इट इज कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. That is why it is called federal. Why it is a federal constitution? Why it is a federal constitution? Physics people will always believe in quantification. ऐसा प्रूफ दे रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, जो तुमको किसी किताब में नहीं लिखेगा, लगेगा कितना ओरिजिनल पॉइंट सर ने बोल दिया. अगर ये 395 आर्टिकल्स हैं इसमें पूरी किताब में, 395 आर्टिकल्स हैं, तो सबसे ज्यादा आर्टिकल किसके नाम पे हैं? 110 से ज्यादा आर्टिकल यूनियन के हैं, स्टेट के आर्टिकल्स कम है. अब वो 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट में यूनियन लिस्ट पे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा आइटम किसमें है? यूनियन लिस्ट. 2 प्रूफ दे रहा हूं आपको व्हाई इट इज बेसिकली ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल डेट टू फोकस टुवर्ड्स यूनिटरी स्ट्रक्चर. आप कोट कर सकते हो कितने आर्टिकल्स हैं, इतना यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स. सो योर आंसर हैज टू बी मेड innovative. Answer has to be unique, which is not written into the books. That must reflect your understanding. If you can evolve your own understanding, then only ideal answers can be written. So understand the main important aspect. If you want to score 100 plus marks in any GS paper, then you have to have your own understanding. Good. मैं इस कोर्स के दौरान एक चीज और करना चाहता हूँ. मैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाऊंगा, प्रीलिम्स के जैसे प्रीलिम्स का केस है, तो प्रीलिम्स में मैं कम से कम ऐसे लोगों को बुलाऊंगा जिनको प्रीलिम्स में 105 से ज़्यादा नंबर आ गया है. मेरे पास सबकी एक्सेस है. कैसे है? कैसे है? जो लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पास करते हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पास करते हैं. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पास करते हैं, उसका 100 से ऊपर आएगा तभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पास ही होगा, नहीं तो होगा नहीं. गुड. अभी मेंस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा. कोर्स कब तक चल रहा है? अप्रैल तक जा रहा है. उसके बाद वो फ्री है. मैं जब कहूँगा तब बुला दूंगा. भाई साहब 4 क्लास दे दे आगे पॉलिटी में. 105 कैसे लाया था तू? और मेरे यूट्यूब चैनल में लगा होगा, कभी आयुष कृष्णा को लगा होगा, कभी कोई लगा होगा. वो सब जिनका भी जीएस प्रीलिम्स के बारे में क्लास लगा हुआ है, किसका क्लास लगाया है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रैंकर का, प्रीलिम्स के लिए. क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो रैंकर है वो इस्टेब्लिश्ड है कि उसको इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आया. बाकी जो कोई पढ़ा रहा है, अरा गहरा नत्थू खैरा, वो 5 क्वेश्चन भी प्रीलिम्स का आंसर कर पाएगा, मुझे डाउट है. वो पढ़ा तो सकता है, बट क्योंकि मूर्खों को पढ़ाना है तो कोई फैक्टर ही नहीं है मूर्खों को पढ़ाने में. लेकिन वो खुद से 5 क्वेश्चन में जब पेपर आएगा ना, जाके चले जाओ, जिसको बहुत बड़ा ज्ञानी लग रहे हो कि मेंटरशिप कर रहा है, वो 5 क्वेश्चन भी आंसर कर पाएगा कि नहीं? आई एम डाउटफुल. बट जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पास किया है ना, वो 5 नहीं, आपके 60 क्वेश्चन को आंसर करेगा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पास किया है. ही इज द बेस्ट. सो आवर मेंटरशिप प्रोग्राम इज हैविंग अबाउट 100 क्लासेस. 100 क्लासेस में मेरी क्लास तो 20-25 हैं कुल मिला के. मेरी जो 100 क्लास मतलब 100 आवर्स हैं, जो 50 क्लासेस के दौरान मेंटरशिप का प्रोग्राम है, मेरी क्लासेस तो 20 से 25 के बीच में हैं. 2 क्लास मुझे पॉलिटी, 1 क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन आंक दिया, 1 क्लास में कुछ आंक दिया, 2 क्लास में इकोनॉमी आंक दी, 2 क्लास में कुछ और आंक दिया. 7 डिसिप्लिन हैं, 3-3 क्लास होंगी. 20 से 25 क्लासेस मेरी हैं.
20-25 क्लासेस मेरे बाकी टीचरों की हैं हर कोर्स में। जैसे इकोनॉमी में 4 क्लासेस में मैंने पूरी इकोनॉमी कर दी है, 4 क्लासेस में, 4-5 क्लासेस में, 2-3 क्लासेस मेरी है, 2-3 क्लासेस टीचर की है। उसके बाद जो 4-5 क्लासेस हैं वो सब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के टॉपर्स की हैं, द पीपल हु आर गोइंग टू टेक। सो दैट इज हाउ आई एम डिवाइडिंग। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 10 क्लासेस हैं करीबन, 5 थिंग्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 50 क्लासेस। 5 क्लासेस जो करंट टॉपर्स हैं, जो मेंस दे के फ्री होंगे, मेंस दे के फ्री होंगे, उनको ही जोतना है इसी साल के मेंस, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में फ्री हो जाएगा, इसलिए वो टॉपर वाला पढ़ाना बाद में है, क्योंकि प्रीलिम्स का फोकस मेरा जाएगा जनवरी के बाद से। नवंबर तक मैंने खत्म किया क्या, जून से लेकर क्या अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त 2 महीने में खत्म हुआ इकोनॉमी। अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक खत्म हुआ आपका ज्योग्राफी, फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक खत्म हुआ आपका पॉलिटी, फिर दिसंबर के आगे 2 महीने जाएगा आपको हिस्ट्री। गुड। और नवंबर के बाद से मेरे पास टॉपर की एक्सेस है, तो यू विल हैव दैट थिंग, करेक्ट। सो 2 महीने जीएस के किसी भी पोर्शन के लिए इनफ है, इकोनॉमी के लिए इनफ है 2 महीने। गुड। अब इकोनॉमी में स्टैटिक पार्ट भी है, करंट अफेयर्स का पार्ट भी है। करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा इकोनॉमी का? इकोनॉमी का करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा? न्यूज़पेपर से आएगा। न्यूज़पेपर तो समझने के लिए उल्टा लटकना पड़ेगा तुमको, रोज पढ़ते रहोगे। इकोनॉमी का एसेंशियल रीड है मेरी किताब के बाद, इस किताब के 4 चैप्टर। कितने? सिर्फ 4। 100 पेज भी नहीं है, 100 पेज भी नहीं है। इसमें जो लेबर एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यूनिट 2 इकोनॉमी लिखा हुआ है, इस किताब का जो इकोनॉमी लिखा हुआ है वो 4 चैप्टर है इसमें। बेसिक इकोनॉमिक डेटा, फाइनेंस, कारपोरेट अफेयर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, 5 चैप्टर इस किताब में हैं। और ये सब करंट इकोनॉमिक डेटा है, करंट। और इसमें से आप देखेंगे कि हर साल के प्रीलिम्स के, इस साल के नहीं, किसी भी साल के प्रीलिम्स के 10 से 15 क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड एज इट इज कॉपी करके आते हैं, एज इट इज। मैं आपको एज इट इज दिखा दूंगा 2024 के और 2023 के क्वेश्चन किताब से वर्ड बाय वर्ड, करंट अफेयर्स के या इस डायनेमिक पार्ट जो भी जीएस का है, सिर्फ इंडिया ईयर बुक से। और ये डेटा अगर मेंस के आंसर में यूज कर दिया जाएगा तो एवरी मेंस आंसर विल बिकम एन इनोवेटिव आंसर। एवरी 10 मार्क क्वेश्चन 150 वर्ड्स रिक्वायर्स 10 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट्स मैं तुमको इसी से खोज के दिखा दूंगा। किसी भी आंसर में मुझे कोई भी आंसर बताना, मेरे घर इंडिया याद कर लिए, मैं कहूंगा 10 पॉइंट लिखो, इसी से 10 पॉइंट लिखाऊंगा, कहूंगा यूनिक आंसर है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, 100 नंबर नहीं आएगा, 130 नंबर आएगा, 130 मार्क्स। GS also gets 130 marks. Scoring in common paper is easy for the smart crowd. Scoring in physics, everybody is good. It is most difficult to score in physics optional. Most difficult to score in physics optional. Because in physics optional, the people who are taking, ये जो क्लास है, इसमें से 70% तो प्रीलिम्स फेल हो जाएंगे, 70% इसमें प्री फेल हो जाएंगे, तो वो तो मेरे कमेंट में ही नहीं है। दे आर नॉट इन माई कंसिडरेशन। हु इज इन माई कंसिडरेशन इन दिस क्लास? ओनली 30%। 22 बैठे, 22 में कितने कंसिडरेशन इस क्लास में? सिर्फ 7, सिर्फ 7। कुछ एक बार में पास में, कुछ तो जो मेंस दे रहे हैं, मेंस फिजिक्स के जो लोग मेंस दे रहे हैं, फिजिक्स के मेंस में कम से कम 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। दे आर हैविंग आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड। कोई किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर है, कोई ड्यू का टॉपर है, कोई किसी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़कर आया है, कोई IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ है, ये वो भी क्या इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बेस्ट क्राउड ऑफ द कंट्री। उसमें से मुझे गायब करना है लोगों को, उसमें से मुझे एलिमिनेट करना है। और वही प्रीलिम्स पास किया है क्योंकि उसका कंप्रेंशन बहुत अच्छा है, वो प्री पास कर गया है। जो स्मार्ट क्राउड है प्री पास कर गया है। तो जब आप मेंस की क्राउड देखोगे, तो फिजिकल टेस्ट सीरीज देखोगे, जैसे मैंने आपका पहले दिन बैकग्राउंड चेक कराया था ना, किसका क्या है, पूछा था ना कौन कहां से क्या पढ़कर आया, ऐसे ही मैं मेंस की क्लास, जो टेस्ट सीरीज की क्लास है, उसमें बैकग्राउंड चेक करा देता हूं, कल आ जाओ कि कौन कहां से पढ़ के बैठा हुआ है यहां पर। उसमें से कितने पास होंगे? 100 में से 25 को कॉल आएगी तो मैं कहूंगा सक्सेस रेट कितनी हो गई? 30% हो गई। 70 तो फेल ही हो जाने हैं ना। जीएस में
कंपटीशन किसके बीच में? सब गधों के बीच में कंपटीशन है यार, कोई लेवल ही नहीं है लोगों का। इस तरीके की क्राउड सारा जीएस में थोड़ा बैठेगी। जीएस में जो 10,000 पास हो रहे होंगे, आपके अगल बगल जो रह के मेंस पास देने जा रहे होंगे, उनका लेवल आपसे बेटर है क्या? उनका जब किसी चीज के टॉपिक में बात करो ना, उनका कंप्रहेंशन का लेवल, उनका आंसर प्रेजेंटेशन का लेवल क्या तुमसे बेटर है क्या? मैं जेएनयू के हॉस्टल में 5 साल रहा, और जब मैं मेंस दे रहा था तो लोग सारे इम्यूनिटीज वाले मेरे से पढ़ने आते थे जीएस, और जब मैं डिस्कस करता तो मेरा लगता है मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल इनसे फार फार बेटर है। उसी टाइम लगता है जिन्हें मेरे पास आते थे, इसलिए मेरे पास आते थे कि माई अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सेम इंटरनेशनल अफेयर्स इज मच बेटर देन व्हेन यू आर स्टडीइंग द सेम सब्जेक्ट। Understanding and comprehension is altogether different game. Understanding and comprehension does not mean that you are studying that subject throughout life. जो फिजिक्स में बेस्ट मार्क्स लाते हैं उनमें से कितनों ने BSc और MSc किया है? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स का देश का सबसे पॉपुलर टीचर हूं और बेस्ट टीचर भी हूं। मैंने कहा फिजिक्स में MSc PhD करी हुई है क्या? मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? दुनिया को पढ़ा रहा हूं। किस क्वालिफिकेशन में पढ़ा रहा हूं? सिर्फ IIT BTech डिग्री, बेस्ट। उसके बाद किसी ने कभी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि लेवल कंप्रेंशन का लेवल जो है, इसलिए लेवल समझदारी का लेवल, कंप्रेंशन का लेवल, आप उसी सब्जेक्ट को जिंदगी भर पढ़ रहे हैं इससे नहीं आता है, उससे आता है कि आपका इंट्रिंसिक लेवल क्या है। आप जिंदगी में तो, चूंकि हमारी क्लास बहुत बढ़िया क्राउड है, ये क्राउड इस एग्जाम को आराम से पास कर सकती है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड एंड ग्रेस्प व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। मेरे पास बहुत कम समय है क्योंकि बहुत सारे आ गए, फिजिक्स पढ़ानी है, बड़ा बोलना तो बहुत कुछ है। ये बहुत सरल गेम है, 2 महीने का कोर्स है, इकोनॉमी 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। मुझे कुछ, और ये समझना मुझे कुछ पढ़ाना है, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है। आई डू नॉट डू एनी स्पून फीडिंग, मुझे सिर्फ आपको पढ़ना सिखाना है। इकोनॉमी में क्या है यार, क्या ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का? कुछ नहीं है। लेकिन आपकी इकोनॉमी की नॉलेज हार्वर्ड से PhD करे हुए की नॉलेज से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप IAS बनोगे, ये ध्यान रखना। हार्वर्ड वाले ने जो PhD करी है इकोनॉमी में जाके, जो MA इकोनॉमी में करके आया दे, वो थ्योरेटिकल है। और आपको क्या करना है आप समझो, आप IIT से BTech करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स के सेक्रेटरी हो गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए या सेक्रेटरी हो गए। हो सकते हो कि नहीं हो सकते बताओ? और चाहे प्राइम मिनिस्टर तो लपक्के बना देगा आपको, जैसे IIT की BTech डिग्री देखेगा ना आपको, या MSc फिजिक्स देखेगा आपको, झट से फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। गुड। और वहां पर तो बैठा हुआ एक उसमें है डिपार्टमेंट ऑफ, 6 डिपार्टमेंट है उसमें, एक का हेड इकोनॉमिस्ट ही होता है, जिसको कहते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक डिपार्टमेंट का हेड है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, वो क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट है, करेक्ट। और सेक्रेटरी क्या पास पढ़ा लिखा हुआ है? BTech IIT या BTech फ्रॉम एनी प्राइवेट कॉलेज। एंड व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन? IAS, दैट्स इट। And by virtue of being an engineering graduate, he had been made secretary. Prime Minister is very happy, बहुत स्मार्ट आदमी है, बना दो। अब उसको चलाना है मिनिस्ट्री, गुड। वो इकोनॉमिक एडवाइजर को ऑर्डर करना है कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है और ये कर दो, CRR घटा दो, SLR कम कर दो। मॉनिटरी पॉलिसी में बैठा है ना, मॉनिटरी पॉलिसी में तो कोई और बैठा है, सेक्रेटरी तो बैठा नहीं हुआ है। लेकिन जिसको बैठाला है ना मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, प्राइम मिनिस्टर खींच के सेक्रेटरी को बाहर करा देगा अगर वो ऑर्डर नहीं कर पाओगे तो। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन को टेम नहीं कर पाए या नहीं करवा पाए आप, तो आप सेक्रेटरी नहीं रहोगे। वो तो सिर्फ मिनिस्टर को बोलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाएगा इन्फ्लेशन को टेम करो। इन्फ्लेशन को वो फाइनेंस मिनिस्टर किसको बोलेगा? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी किसको बोलेगा? जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, उनको ऑर्डर देना है ना। अब वो बहसबाजी करने लग जाएंगे, ये वो ऑर्डर देना, भाई साहब मेरे पास ये टूल है, CRR ये, SLR ये, रेपो रेट ये, रिवर्स रेपो रेट ये। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मेरे पास गाइडलाइन है, 4 से 6 के बीच में होनी चाहिए मेरी इन्फ्लेशन, कहिए ना 4 to 6। ऑर्डर दे दिया तो आपको चलाना है ना। तो चलाने के आपको इकोनॉमी की इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वो जो वहां पर इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है वो आपको ना चलाए, आप उसको चला सको। नहीं तो IAS की गरिमा को घटा रहे हो आप, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इन IAS। इसलिए ये मत कहना कि शशिकांता दास वाज MA इन हिस्ट्री। शशिकांता दास वाज MA इन हिस्ट्री बट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ही हैज बीन मेड गवर्नर ऑफ RBI। और D सुब्बा राव, ही वाज आल्सो गवर्नर ऑफ RBI। वो क्या थे? MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT कानपुर।
That's it. He has been Governor of Reserve Bank of India, custodian of monetary policy. Good. So by qualifying this exam, you can always become Secretary of Ministry of Finance. कोई क्वालिफाई दूसरी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड की जरूरत है क्या उसके लिए? Nothing else is required. My classmate, BTech IIT Bombay. My classmate did MA in economics from Oxford, PhD from Harvard, being in IAS, economics. He is Secretary to the Government of India. किस डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताऊंगा बस. My classmate. What is the original qualification? BTech from IIT Bombay. MTech complete नहीं किया. And he did MA, Harvard, Oxford, and PhD from Harvard. In which subject? Economy. In service. 10 साल की सर्विस के बाद जो होशियार होते हैं ना, स्मार्ट क्राउड, जो IIT से पढ़ के जाते हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, 2 ही इलीट है यहाँ पर इस देश में. IAS के सेगमेंट में 2 लोग ही इलीट गिरा जाता है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और एक IIT. तो आराम से अच्छी जगह पढ़ने चले जाते हैं, अच्छी जगह, और इलीट का पूरा यूज उठाते हैं. अब सबको थोड़ा हार्वर्ड को पढ़ने को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिलेगा. अच्छा बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 10 साल की सर्विस है, नहीं तो पब्लिक पॉलिसी में मास्टर कर लो जाके, कहीं से भी हो जाता है. मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी कई सारे ISJNU से भी कर लेते हैं जी. मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी देखोगे, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी कर लिया, BA पास थे, MA कर लिया है, तो ऑक्सफोर्ड ने तो एडमिशन ही नहीं दिया ना. आगे सोने से थोड़ा ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल जाएगा आपको, बैकग्राउंड भी काम आ जाता है. सो योर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ इकोनॉमी इज हाउ टू रन द इकोनॉमी. पूरा फ्रेमवर्क चाहिए उसके लिए, पूरा फ्रेमवर्क. इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो क्या क्या टूल्स है मेरे पास, फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स हैं, मनी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, इतनी फिजिक्स की इतनी सरल चीजें हैं. देखो भैया, 2 सबसे पतली किताबें, मैंने कहा 2 महीने में क्यों हो जाएंगी, 2 महीने तो जरूरत से ज़्यादा है, 1 महीना ही वैसे करा सकता था तुम्हें. 2 किताबें ऐसे, मेरी 11 किताबें हैं, 11, 5 कोर्स हैं और 1 है प्रीलिम्स के पेपर्स. ये इकोनॉमी है सिर्फ कितने पेज की, 90 पेज की, 90 पेज की इकोनॉमी की किताब है, 90 पेज की. अगर इस किताब को याद कर लो, समझ लो, सारे क्वेश्चन आंसर along with the 4 chapters of this, on just these 2 knowledge basis, 4 chapters, बमुश्किल से 70-80 पेजेज, 90 pages of this, 200 pages you remember. Whole paper 2 is answered, whole paper 3 is paper 3 economic portion is answered, and prelims questions are answered. Just 2. India yearbook and this. ये सही से पढ़ा है, इसका क्या प्रूफ है? फिजिक्स की क्लास सही चल रही है, इसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है बताओ? अभी पकड़ नहीं पा रहे हो. फिजिक्स की क्लास अच्छी चल रही है, इसका क्या प्रूफ है? PYQs आर आंसर्ड. जिसको मैंने ट्यूटोरियल सीट के हिसाब से 34 ईयर के क्वेश्चन कर रखा है, वो क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? गुड. इसी तरीके से मैंने जैसे यहाँ चैप्टर लिखा हुआ है उसी के साथ यहाँ पर बना दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. दूसरा वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आंसर कर पा रहे हो तो इसकी पढ़ाई सही है, इसका कंटेंट सही है. ये क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक बाई टॉपिक कलेक्ट करके रख दिया है मैंने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इसके बाद सब्जेक्टिव के और बना लो, चैप्टराइजेशन कर ही रखा है. सब्जेक्टिव के मालूम पड़ गए आपको, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मालूम पड़ गए कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है. करंट डेटा कहां से यूज हो गया, इससे ज्यादा लेटेस्ट डेटा तुमको कहीं नहीं मिलेगा. इंडिया 25 से लेटेस्ट डेटा तुमको इकोनॉमिक्स का सिर्फ इकोनॉमिक उसमें ही आएगा, सर्वे में. इससे ज्यादा लेटेस्ट डेटा कहां आएगा? सिर्फ सर्वे में आएगा, जो आएगा 26 के फरवरी में, 26 के जनवरी में जो आएगा ना सर्वे, उसी में डेटा आएगा. इससे पहले इस साल तक के लिए मोस्ट ऑथेंटिक डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सपेक्टिव इज रिटन इन भारत 2025. कोई बुक, कोई कोचिंग, कोई नोट्स, इससे ज्यादा क्या जोड़ सकता है लेटेस्ट? बताओ मुझे तुम, इससे ज्यादा लेटेस्ट डेटा कहां आ सकता है कोई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा है, और अगर कोई आया है तो ऑथेंटिक नहीं है. आया अगर है कोई डेटा तो कोई ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि दिस इज द ओनली डेटा पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग.
And that is why I say they ask if any data will be asked. That data is culled, selected from here. This is the only source from which they select the data. ये वही है जो योजना छापता है, कुरुक्षेत्र छापता है, वही एक बुक छापता है भारत। तुम में से कितने ने भारत देखा है या पढ़ा है? पूरी आईएएस की तैयारी हो जाएगी, भारत नहीं पढ़ोगे। इसका नाम भारत हो गया है, पहले इंडिया था ये, इंडिया एयर बुक। अब मैं इंडिया एयर बुक ही बोलता हूँ इसको। गुड, आज की क्लास खत्म करते। समझ में आ गया भाई साहब? क्या करना है, क्या स्टडी, समराइज करो, समराइज करो बस। अच्छा, फिर क्या क्या इस प्रोग्राम में और क्या क्या था? ये 10 महीने की क्लास, 10 महीने की 50 क्लासेस थी। मेरा जो पूरा कोर्स है, मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या है? उसमें ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, सेल्फ स्टडी कोर्स है जो आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना, मुझे सिखाना है। इकोनॉमी है, सिर्फ एक किताब दूंगा, 2 किताब दूंगा आपको पहले महीने में, ये पढ़नी है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसको पढ़ने के लिए 5 क्लास लेनी है। 5 क्लास में 3-4 क्लास मेरी है, हो सकता है मैं पूरी 5 ही भी ले दूं, बट वो संडे को या वीकेंड को मैं क्लास लूंगा। अभी मैं हेक्टिक बिजी चल रहा हूँ, तभी 2 ही क्लास लूंगा, उसके बाद किसी टीचर को लगा दूंगा, 2-3 क्लास टीचर लेगा। 5 क्लास में पूरी किताब खत्म होनी है। 10-12 चैप्टर हैं, एक दिन में 2 क्लास, एक दिन में 3 क्लास खत्म कर दिया, 2 क्लास खत्म, 2 चैप्टर खत्म कर दिए मैंने एक दिन में। मैं ही खत्म कर सकता हूँ एक दिन में। आपको सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, 2 चीज़ें खत्म कर दूंगा मैं एक सिंगल क्लास में, 2 घंटे की क्लास में, 2.5 घंटे की क्लास में। ऐसे ये किताब जो इसमें 10-12 चैप्टर हैं, इस पूरे किताब को कैसे पढ़ा जाए, उसके बाद कैसे क्वेश्चंस हैं, इन सबको वी विल, फॉर एवरी बुक वी हैव गॉट 10 लेक्चर्स अलॉटेड। ठीक है जी, 10 लेक्चर्स अलॉटेड। तो टोटल शेड्यूल क्या क्या है इसमें? ये बुक्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, अपने आप में सेपरेट प्रोग्राम है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, सेल्फ स्टडी मॉड्यूल, 11 किताबें इसमें प्रीलिम्स का है। फिर है इसके साथ 45 टेस्ट की टेस्ट सीरीज। कितने टेस्ट? 45 टेस्ट। कैसे हैं 45 टेस्ट? 30 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 टेस्ट है इसमें। ये 30 टेस्ट कैसे हैं? इकोनॉमी के 3-4 होंगे, बाकी 4 होंगे, 4 होंगे, 4-5 फुल लेंथ होंगे या 10 फुल लेंथ होंगे। 5 डिसिप्लिन है ना, 5 डिसिप्लिन के 4 टेस्ट है। इकोनॉमी के 4, पॉलिटी के 4। जैसे जैसे खत्म करोगे पेपर में खुद देने हैं आपको, उसके बाद सोल्यूशन सीट दे दिए, आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। गुड। एक्स्ट्रा में 10 ये सी सेट भी दे दिए हैं ताकि फेल ना हो जाओ, सी सेट एक्स्ट्रा में दे दिए हैं। गुड, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ फिजिक्स वालों को सबको पास हो जाना चाहिए सी सेट में। तो इसमें क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है पूरा, फुल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स comprising of 11 books. Then there is a test series comprising of 45 tests, 15 tests for CSET, 30 tests for the general studies. 30 tests में कैसे है? 20 tests are subject specific, 4-4-5 के 5 सब्जेक्ट हैं, 4-4 के 5 20। 10 टेस्ट कैसे होंगे? फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। करेक्ट, ये टेस्ट सीरीज है। फिर ईयर लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम है, वीक में रिव्यू कर लेंगे। आपके 3 चैप्टर हैं, 2 महीने में 10 चैप्टर कराने हैं। मैंने पहले दिन में आऊँगा, मैं कहूँगा इकोनॉमी में पूरी किताब में कितने हैं, देखो 16 हैं। एक क्लास में 4 चैप्टर कहाँ तक गए देखो, कितने पेज हैं? 33 पेजेज में 4 चैप्टर खत्म हो गए, 33 पेजेज में। गुड। एक वीक में 33 पेजेज पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? 33 पेजेज पढ़ने एक वीक में। एक वीक में अगर 33 पेजेज पढ़ने हैं तो 4 वीक में सारे पढ़ गए, 4 वीक में सारे पढ़ गए। उसके बाद सेकंड रीडिंग कर दो। 8 वीक है ना, एक के लिए 8 वीक है। इकोनॉमी पूरा पढ़ना सिखा रहा हूं, पूरा 16 चैप्टर हैं, अगर समझ लो 16। और क्या क्या है? यही है, किसी भी जगह यही पढ़ना चाहिए, किसी कोचिंग वाले को भी यही पढ़ाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा रहा है, जैसे हम फिजिक्स में बता देते हैं ना, मैकेनिक्स में कितने टॉपिक हैं? 4। इकोनॉमिक्स में भी यही 16 टॉपिक हैं, जो सब कुछ जोड़ दिया है। बस बता देता हूं। कोचिंग अगर दूसरी जगह पढ़ रहे हो तो टीचर को टेस्ट कर सकते हो कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 16 भी नहीं, 12 है, सिर्फ 12 चैप्टर हैं। 12 में मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 12th बना दिया है। इंटरनेशनल, इस बार भी IBRD पे और IMF में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा चैप्टर बनाया हुआ है 6 पेज का, 93 से 98 तक का बनाया हुआ है मैंने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर 11 बनाया हुआ है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, आउटकम्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है। फिर चैप्टर 10 बनाया हुआ है फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, ये 10th है। 9th है पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट। बजट से भी 3 क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में आए, मेरी किताब से सीधे आए हैं। बजट के 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस बार आए हैं और तीनों मेरी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। ये किताब किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने ना लिखी है। किसने लिखी है? मैंने, मेरा नाम फोटो छपा हुआ है और पहला पेज मेरे नाम पे लिखा है डीपी वाजपेयी। मेरा नाम ऐसे नहीं लिखा जाता कहीं, मैं ऐसा नाम अपना नहीं देता कहीं। कहोगे फोटो खिंचवाने में भी डरता हूं, फोटो भी उसी के साथ खिंचवाता हूं जिसका लेवल मुझे मालूम होता है। उसी किताब में अगर किसी और ने भी लिखी होगी ना, तभी भी अगर अपना नाम दिया होगा, तो आई मस्ट हैव बीन फर्स्ट सेटिस्फाइड विद द complete contents that these contents cover to the requirement of this exam, otherwise I would have never given my name। समझ रहे हो जी? तो ये सब मेरे नाम पे है, पूरा कोर्स मेरे नाम पे है। हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स के लोग जो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, मेरा टारगेट है कि फिजिक्स के बहुत सारे लोग, फिजिक्स ऑप्शनल में, केमिस्ट्री ऑप्शनल में, मैथ्स ऑप्शनल में, बहुत सारे लोगों की फाइट प्री पास करना है। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स कभी जीवन में, बीटेक वाले तो पढ़े हुए होते हैं, जो इंजीनियरिंग बीटेक करता है, बीई करता है, वो इकोनॉमी भी पढ़ा हुआ होता है, बाकी चीज़ें, ज्योग्राफी वो भी नहीं पढ़ता, ज्योग्राफी और हिस्ट्री वो भी नहीं पढ़ता, पॉलिटी भी नहीं पढ़ता, लेकिन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा हुआ होता है बीटेक का स्टूडेंट, और भी सोशोलॉजी और साइकोलॉजी भी पढ़ा हुआ होता है। लेकिन जो बाकी भी एससी एमएससी करते हैं, उनको ना तो इकोनॉमी आती है, साइंस के लोगों का बैंड बजा हुआ होता है यूनिवर्सिटी से, इसलिए उनके लिए प्रीलिम्स पास करना उल्टा लटकना है बीएससी वाले बैकग्राउंड के लिए। इसलिए हमने खास तौर पे कोर्स इस पे, और इसीलिए प्लानिंग क्या है, इसीलिए कह रहा हूँ साइंस टेक सबसे आखिरी में ले जा रहे हैं, सीसेट सबसे आखिरी में ले जा रहे हैं। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो हम सबसे बिगिनिंग में कर रहे हैं। बीएससी के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमी कठिन है, ज्योग्राफी कठिन है, उस पार्ट को हम शुरू में ही नापे दे रहे हैं। इस ऑप्शनल के साथ, जैसे ऑप्शनल खत्म होगा नवंबर तक, तब तक 2 कोर्स खत्म हो जाएंगे। ज्योग्राफी मेरे लिए बात करना सबसे आसान है, इकोनॉमी मेरे लिए बात करना सबसे आसान है, मेरे लिए 3 कोर्स बात करना सबसे आसान है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस का बंदा हूँ, मेरी एमफिल पीएचडी किसमें, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। गुड, आज की क्लास तो खत्म। कुछ पूछना है पूछो, कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछो। भाई साहब कुछ पूछना है, पूछ रहे थे। You wanted to ask some question? Yes? No, you didn't want to ask. Okay, no problem. Nobody wants to ask any question? समझ रहे मेरी क्लास की सबसे अच्छाई क्या है? समझ रहे भैया, मेरी क्लास में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता मुझसे। मेरी क्लास में सिर्फ लोग मुझे सुनते हैं और वीडियो मांग के सुनेंगे। अब जैसे वीडियो बनवा दिया है मैंने, अब इसको कहता हूँ खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो भैया, झट से खत्म करो, और इसको डिलीट, वहाँ से कट मारो।